Good afternoon, students. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. Okay, so shall we start or we should wait for further? We can start. We can start. I can see we have 40. Let me start sharing the screen. Okay. So what we are doing today is we are starting like a fresh topic, and this topic is like it has got no correlation with whatever things we have studied. So ये एक benefit है कि जो session होगा, ये जो topic है, ये बिल्कुल independent है. तो just in case अगर previous lecture किसी ने miss भी किया है, so I think वो इतने चिंता की बात नहीं होगी क्योंकि ये fresh topic start हो रहा है, ठीक है? और इसके लिए कोई prerequisite नहीं है. Database के बारे में basic information is enough. Okay. So distributed database, as you can see, the evolution of distributed database management system, we call it as DDBMS. अभी तक तो हमने पढ़ा था DBMS. Now what is it like called as DDBMS? D stand for distributed. Okay. So centralized database required that corporate data to be stored in a single site. उसके कुछ नुकसान थे, performance degradation as number of remote sites grew, high cost to maintain large centralized DBs, and reliability problem with one site. See, basically क्या होता है कि जब हम एक नया concept पढ़ रहे हैं, when we are trying to study altogether new concept, so one thing that immediately comes to our mind is कि ये नई चीज में क्या फायदे हैं या फिर पुरानी चीज में क्या प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से हम नई चीज की तरफ जा रहे हैं. So this we have to think. ठीक है ना? अगर हम एक डिस्ट्रीब्यूटेड टॉप, अभी तक तो we were talking about only database. Now all of a sudden we are talking about distributed database. So हो ना हो जो पहले का सिस्टम यूज होता होगा या अभी का सिस्टम जो हम यूज होगी. So that's the idea. So now the question, हम यूज करते थे उस सिस्टम को क्या कहते थे? तो उस सिस्टम को हम कहते थे सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस, और उसके तीन डिसएडवांटेजेस दिए हुए हैं. सो प्रोबेबली ये तीन डिसएडवांटेज थे, इसी वजह से ये तीन डिसएडवांटेज थे, इसी वजह से हमने डिस्ट्रीब्यूटेड की तरफ स्विच किया. Now one by one we will study what were the disadvantages in the centralized system
और रादर आई शुड से डिसएडवांटेज तो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हमें ये तो समझ में आ जाए कि सेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है. Okay, now I will tell you what is centralized system. Now say for example GLA University की बात करते हैं. So when we are in GLA University में आपको कभी भी कोई confusion हो, कभी भी कोई problem हो, तो हम लोगों ने एक concept बना रखा है class advisor का. So class advisor at GLA University is one point of contact where you can ask him anything and everything. Now वो आपके लिए मेन बंदा है, ठीक है ना? He is the main person from whom you can ask anything. Now say for example he happens to be ill or some personal problem or for whatever reason he is not coming to the university for maybe 10-15 days. Now it's a big problem. आपको अपनी अटेंडेंस मॉडिफाई उनसे करानी होती है, आपको किसी सब्जेक्ट का फीडबैक उसको देना है, आपको कुछ और प्रॉब्लम डिस्कस करनी है, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम डिस्कस करनी है, क्योंकि क्लास एडवाइजर इज सपोज्ड टू बी वेरी क्लोज विद द स्टूडेंट्स. सो अब वो तो हो नहीं रहा, तो इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस, जहां पर आप सिर्फ और सिर्फ एक बंदे पे डिपेंडेंट होते हो फॉर ईच एंड एवरीथिंग. You are dependent on one and only one person for each and everything, and just in case अगर उसको कुछ हो जाए, so everything is stopped. Everything is stopped means you cannot move ahead, you cannot move further. फिर काम कैसे चलेगा? यानी कि काम रुक जाएगा, है ना? तो ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई. So इसी को कहते हैं सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस. अब इसमें जो 3 प्रॉब्लम बताई गई हैं वो एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं. परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन. अब भाई एक क्लास एडवाइजर है, वो भी तो एक इंसान ही है ना. अब एक क्लास में मान लीजिए 40 बच्चे हैं, तो 40 से बच्चे बढ़ जाते हैं, 40 से मान लीजिए 45 हो जाते हैं, 50 हो जाते हैं, 55 हो जाते हैं. सो क्वाइट पॉसिबल देयर विल बी अ सिचुएशन जहां पर एक टाइम ऐसा आएगा इवन एडवाइजर इज अनेबल टू हेल्प यू बिकॉज ही इज ऑलरेडी फ्लडेड विद सो मेनी क्वेरीज ऑफ द स्टूडेंट्स, है ना? तभी तो आपने देखा होगा जब हम यहाँ जीएलए में पढ़ाई करते थे, आप लोगों ने तो फर्स्ट ईयर में यहाँ फिजिकली की है टिल मार्च, तो आपको पता होगा देयर वाज वन कांसेप्ट ऑफ क्या कहते हैं, ट्यूटोरियल्स. तो ट्यूटोरियल को इतना इंपॉर्टेंट क्यों? Are you able to listen to me? Yes. Yes, sir. Now you are. Yes, sir. Okay. So I'll start all fresh. मैं आपको ये बता रहा था सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस का कॉन्सेप्ट. अपना सारा डेटा रखते हो तो उससे प्रॉब्लम क्या होती है कि हर आदमी को रिक्वेस्ट उसी से करनी पड़ेगी. तो जस्ट इन केस अगर वो सेंट्रल डेटाबेस अगर फेल हो जाए तो फिर डेटा कहां से मिलेगा? जैसे मैंने क्लास एडवाइजर का एग्जांपल दिया,
तो उसमें परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन भी होती है कि अगर नंबर ऑफ लोग ज्यादा क्लास में ऐड हो जाए तो दिक्कत होगी। हाई कॉस्ट, यस, आपको इतने बड़े डेटाबेस को बनाने के लिए खर्चा भी होगा, और रिलायबिलिटी इज अ प्रॉब्लम कि हो सकता है कि अगर वो फेल हो गया तो फिर डेटा कभी रिकवर हो ही नहीं पाएगा। यही रीजन है कि जितनी बड़ी कंपनीज हैं वो अपने पास क्या रखती हैं, दे कीप अ बैकअप ऑफ डेटा। आई होप यू रिमेम्बर, मैंने आपको रिकवरी पढ़ाया था, तो उसका कंसेप्ट यही था। So here you can see by the help of one another example, एक यूजर है आपकी तरह, वो अपने कंप्यूटर से इंटरेक्ट करता है और वो रिक्वेस्ट करता है और उसको रिप्लाई मिल जाता है, लेकिन उसको जो रिप्लाई मिल रहा है वो कहां से मिल रहा है, एक डेटाबेस से, जो कि सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस की बात है। नाउ हम क्यों डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस यूज करें? अब क्यों से पहले हमें ये समझना होगा कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस होता क्या है। सो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस एक ऐसा कंसेप्ट है कि डिफरेंट टू द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस। अब जो आप अपना डेटा रखोगे, वो जो डेटा होगा वो एक जगह पे नहीं रखोगे, अब आप वो अपना डेटा मल्टीपल जगह पर रखोगे। तो इससे फायदा क्या, इससे फायदा ये होगा कि जस्ट इन केस अगर आपका डेटा एक जगह पे से मिसिंग भी हो जाएगा, तो आपने उसी डेटा की कुछ कॉपीज रखी होंगी, तो वो डेटा आपको वहां से मिल जाएगा। तो आपको इन अ सेंस अगर ये कहूं, नुकसान कम होगा। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है ना। तो अब हम डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस की तरफ क्यों जा रहे हैं, हमें क्या एडवांटेजेस नजर आ रही हैं, तो वो मोटिवेशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशनल और इकोनॉमिक रीजंस। भाई एक बड़े डेटाबेस को रखना आसान नहीं है, ठीक है। सेकंड, इंटरकनेक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग डेटाबेस। अब हमारे बजाय कि एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस होने के, नाउ वी विल बी हैविंग मल्टीपल डेटाबेसेस। यही तो मैंने आपको कहा, डेटा अब आपका एक जगह ना स्टोर होके मल्टीपल प्लेसेस पे स्टोर होगा। देन देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ इंक्रीमेंटल ग्रोथ। अभी क्या है, डेटा बहुत बढ़ता जा रहा है, डे बाय डे डेटा इतना बढ़ रहा है कि उस डेटा को मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। तो उस डेटा को मैनेज जब नहीं किया जा रहा, तो फिर क्या करोगे, तो डेफिनेटली यू हैव टू फॉलो दिस डिस्ट्रीब्यूटेड थिंग। रिड्यूस्ड कम्युनिकेशन ओवरहेड। ओवरहेड का मतलब मैंने कल परसों आपको बताया था, एक्स्ट्रा वर्क। तो क्या होगा इससे कि अभी सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस में आपको सारा काम करना है, तो उसमें बड़ी दिक्कत हो रही है कि हो सकता है कि इस डेटाबेस पे कोई चीज अवेलेबल ना हो, या डेटाबेस वाली साइट को कुछ हो जाए सेंट्रलाइज में, तो फिर आपके लिए बड़ी दिक्कत वाली बात हुई। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम ये कर रहे हैं। परफॉर्मेंस, यस, अगर आप एक ही डेटा मल्टीपल जगह अवेलेबल करा दोगे तो परफॉर्मेंस तो ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, क्योंकि एक के ऊपर बर्डन कम होगा। आप खुद सोचो, एक एक जगह आप कहीं जाते हो, मान लीजिए खाने पीने के लिए आप हल्दीराम जाते हो या जीएलए की कैंटीन में जाते हो, और आप देखो कि अगर एक ही काउंटर है जहां से आपको टोकन मिल रहे हैं, तो पता चले आप लाइन में आधा आधा घंटा खड़े रहोगे। तो इसको अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, मल्टीपल काउंटर्स बना देते हैं। सेम कंसेप्ट, अब डेटा आपको एक आदमी नहीं प्रोवाइड करेगा, मल्टीपल जगह से आपको मिल सकता है, जो आपके नजदीक हो आप वहां से ले लो, और इसी से रिलायबिलिटी और अवेलेबिलिटी होगी। डेटा मुझे जल्दी अवेलेबल हो जाएगा, परमानेंटली अवेलेबल होगा, और जस्ट इन केस अगर कोई दिक्कत भी आ जाती है, तो मैं इतना मुझे निश्चिंती है कि वो डेटा मुझे वहां से ना मिलके, क्योंकि अब वो साइट खराब हो गई है, तो कहीं और से मिल जाएगा, एक डेटाबेस से नहीं मिलेगा तो दूसरे से मिल जाएगा, लाइक। सो यू कैन सी दिस डेफिनेशन डायग्राम। So this is the concept of distributed database. Distributed database ही कहता है मैं multiple जगह पर अपना डेटा रखूंगा, and definition says it is the union of what appear to be two diametrically opposite approaches to data processing, data systems and computer networks. ठीक है, so now this you can read, क्योंकि ये आपके एग्जाम में एज अ शॉर्ट आंसर भी आ सकता है और एज एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। I'll request you to go through this once, then we can start. Done? क्लियर है, जो अभी तक बताया वही है या कुछ अलग है? सर बस एक बार पढ़ ले, आधा रह गया है।
पढ़ लीजिए। Okay, sir, done. ठीक है। सो इट्स लाइक वेरी सिंपल। डेटाबेस टेक्नोलॉजी को और इम्प्रूव करने के लिए हम डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस की तरफ आगे जाते हैं। ठीक है, ओके। सो दिस 6 स्लाइड 7 स्लाइड ये बेसिकली एग्जांपल है। अब आप ध्यान से देखो, ये तो सिस्टम है आपका सेंट्रलाइज्ड पहले वाला। इसमें क्या है, बहुत सारी साइट्स है और किसी एक साइट को आपने डेटाबेस बना दिया। तो अगर मान लीजिए अब साइट 1 को डेटा चाहिए तो वो भी साइट 2 से मांगेगा, साइट 5 को डेटा चाहिए वो भी साइट 2 से मांगेगा, साइट 4 को डेटा चाहिए वो भी साइट 2 से, और साइट 3 को चाहिए वो भी से। लेकिन अब इस एग्जांपल में क्या है, जो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस है, अब आप देखो अपने डेटाबेस को मल्टीपल जगह पे रखा है। मैंने साइट 2 पे भी कुछ डेटा रखा है, साइट 5 पे भी कुछ डेटा रखा है, साइट 3 पे भी कुछ रखा है, साइट 4 पे भी रखा है। हो सकता है साइट 4 को साइट 2 से कोई डेटा चाहिए हो सकता है साइट 4 को साइट 5 से। तो अभी क्या है, मल्टीपल प्लेसेस पे डेटा अवेलेबल है। तो अब इजी अवेलेबिलिटी हो गई है किसकी, आपके डेटा की। ठीक है, सो दिस इज द एनवायरमेंट। डेटाबेस कंसिस्ट ऑफ 3 रिलेशन। ये एक एग्जांपल दिया हुआ है, इसको हमें करने की जरूरत नहीं है। नाउ दिस इज द एडवांटेजेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। अब आप इसको पढ़ सकते हो। आई थिंक ये हम बार बार पढ़ चुके हैं। रिलायबिलिटी का मतलब कुछ गड़बड़ होने पर भी डेटा हमें मिलेगा। परफॉर्मेंस मींस अब क्योंकि हम एक बंदे पे डिपेंडेंट नहीं है तो डेटा हमें जल्दी मिल जाएगा, तो उससे हमारी परफॉर्मेंस बढ़ेगी। ठीक है ना, कई बार कहते हैं ना, एक एल्गोरिथम है हमें 15 सेकंड में जवाब दे रही है और एक एल्गोरिथम है 5 सेकंड में हमें आंसर दे रही है, तो 5 सेकंड वाली एल्गोरिथम अच्छी है। तो यहाँ पर भी अब मुझे फटाफट डेटा मिल जाएगा, परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। ईजियर सिस्टम एक्सपेंशन। ईजियर सिस्टम एक्सपेंशन का मतलब है अब हम इस सिस्टम में और भी चीजें जोड़ सकते हैं, जल्दी जुड़ जाएगी ऑब्वियसली ना। अब क्योंकि वो एक से डील नहीं करना, अब तो मल्टीपल लोग हैं जिनके पास डेटाबेस है। एंड नेक्स्ट इज ट्रांसपेरेंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड एंड रेप्लिकेटेड डेटा। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब बांट देना। जो पहले डेटा मैं एक ही जगह रख रहा था सेंट्रलाइज, अब वो मैंने जगह जगह बांट दिया है। कैसे बांटा है, वो इस तरीके से बांटा है कि हो सकता है कुछ जगहों पे मैंने उस डेटा की मल्टीपल कॉपीज रखी हुई है। कई बार ऐसा होता है ना कि अब मान लीजिए एक कोई अर्जेंट, मैंने आपसे किसी एक बच्चे से कहा, मान लीजिए उज्जवल मुझे दिख रहा है, मैंने उज्जवल को कहा उज्जवल फटाफट मुझे ये डेटा बना कर दो। तो उज्जवल ने मेरे लिए मेहनत की, उज्जवल ने मुझे डेटा बना के दिया। तो उज्जवल ने क्या किया, उज्जवल मेल टू मी दैट डेटा, उज्जवल मेल्ड मी दैट डेटा, उज्जवल ने मेल कर दिया। लेकिन उज्जवल ने एक चीज ये सोची कि क्योंकि सर ने मेरे से अभी अभी ये डेटा मंगाया है, तो हो सकता है सर दोबारा मांग ले कभी, या मेरे पास एक कॉपी रहनी चाहिए, हो सकता है मेरे से मिस हो गया और सर दोबारा मांगे तो मैं कैसे दूंगा। तो उज्जवल ने क्या किया, उसकी एक कॉपी अपने पास रख ली। तो व्हाट उज्जवल हैज डन इज उज्जवल हैज रेप्लिकेटेड दैट डेटा, उस डेटा की मल्टीपल कॉपीज रखी हुई है। कई बार ऐसा होता है ना, हमारे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं तो हम उसकी एक फोटोकॉपी भी अपने पास रखते हैं कि अगर मान लीजिए वो नोट्स खो गए तो हमारे पास एक बैकअप होना चाहिए। तो बेसिकली रेप्लिकेशन इज एक और एक्स्ट्रा कॉपी रखना, है ना। अब ये रेप्लिकेशन तो हम पढ़ते हुए आए हैं, डेटा डुप्लीकेशन रेप्लिकेशन एक ही चीज होती है। डुप्लीकेशन मींस पूरा का पूरा डेटा एज इट इज रखना, और रेप्लिकेशन का मतलब होता है कुछ डेटा को रेप्लिकेट कर सकते हैं, पूरा भी डेटा हो सकता है, इट डिपेंड्स। ठीक। अब ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। कोई मुझे बताएगा व्हाट इज ट्रांसपेरेंसी, व्हाट इज सर सबको ट्रांसपेरेंसी? सबको सारे डेटा के बारे में पता है, मतलब शुभांशी, यहाँ एक्चुअली ये उल्टा होता है। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है कि सिस्टम को तो पता होगा। से फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अगर मान लीजिए पारदर्शिता। नहीं, पारदर्शिता सही है, यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी थोड़ा डिफरेंट है। आई गिव यू एन एग्जांपल। मान लीजिए आप गूगल पे कुछ ढूंढिए, और गूगल पे आप कुछ ढूंढ रहे हो, वो ऐसी चीज ढूंढ रहे हो जो कि इंडिया से रिलेटेड नहीं है, तो वो इंफॉर्मेशन आपको कैसे मिलेगी? सर्च करेंगे तो मिल जाएगी। है? नहीं, सर्च करेंगे तो मिल जाएगी, बट गूगल वो आपको डेटा कैसे प्रोवाइड कर रहा है? उसके पास पहले से वो डेटा था वो। एग्जैक्टली तो वो डेटा उसका कहाँ था?
उसके डेटाबेस में रहा होगा। तो क्या जरूरी है गूगल का एक ही डेटाबेस हो? नहीं। हाँ, यही मेरा बात है। सी, गूगल इतनी बड़ी कंपनी है, आप मतलब आपके मन में जो भी आए, कोई भी XYZ चीज आए, उससे रिलेटेड आपको डेटा मिल जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है उनका डेटाबेस बहुत बड़ा होगा। रादर आई शुड से उनके मल्टीपल डेटाबेसेस होंगे। तो यस बेटा मैं सर। ये कह रहा हूँ, ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन अगर उसने मल्टीपल डेटाबेसेस बना रखे हैं, तो वो इस तरीके से अपने डेटाबेस को मैनेज करती है कि जब एंड यूजर तक वो डेटा पहुंचे, तो एंड यूजर तक डेटा पहुंच जाए। दैट इज इंपॉर्टेंट। आपको अगर आपने मान लीजिए शुभांशी आज आपने टाइप किया इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच का स्कोर, तो शुभांशी आपको इससे कोई लेना देना नहीं है कि वो जो इंफॉर्मेशन आपके पास आई वो इंडिया के सर्वर से आई, ऑस्ट्रेलिया के सर्वर से आई, यूके के सर्वर से आई, पाकिस्तान के सर्वर से आई, कहीं से भी आई। आपको तो एज एंड यूजर आंसर मिलने से मतलब है। सो दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसपेरेंसी। आ रहा समझ में? यस कहां सर। से आई कैसे आई कोई मतलब नहीं, बट डेटा मिल जाना चाहिए। क्लियर? यस सर। यू कैन से इट्स लाइक मोर, आपने एक टॉपिक पढ़ा था डीबीएमएस में, स्टार्टिंग में मैंने पढ़ाया था प्रोसीजरल डीएमएल एंड नॉन प्रोसीजरल डीएमएल। तो प्रोसीजरल डीएमएल होता है जिसमें आपको क्या चाहिए और कैसे चाहिए दोनों बताया जाता है, लेकिन नॉन प्रोसीजरल में ओनली यू हैव टू स्टेट व्हाट। क्या चाहिए? आई एम सॉरी, कैसे चाहिए ये नहीं बताया जाता। ट्रांसपेरेंसी भी वही चीज होती है। ठीक है? ओके, नाउ वी शैल मूव टुवर्ड्स 10th, दिस डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस डिजाइन। मेरे ख्याल से अभी तक डेटाबेस जो पढ़ा है वो बहुत था, ये वाला पॉइंट आपको नहीं पढ़ना 11 में, डिजाइन वाइजाइन, है ना? ये भी नहीं पढ़ना। यस, अब ये आपको पढ़ना। नाउ अब क्वेश्चन ये आता है, अब क्वेश्चन ये आता है कि मान लीजिए हम तो डेटाबेस की बात कर रहे हैं, तो डेटाबेस तो बहुत बड़ा टर्म है, हम उसको थोड़े छोटे लेवल में समझ लेते हैं। मान लीजिए एक हमारा रिलेशन आर है। सो रिलेशन आर मींस एक टेबल, ठीक है? और एक नेटवर्क में, भाई हम एक क्लास के नेटवर्क में जुड़े हुए हैं, तो ऑब्वियसली बात है हमें इंफॉर्मेशन जो शेयर करनी होगी या अपने बीच में जो डेटाबेस रखना होगा वो आपस में ही तो रखना होगा। तो मान लीजिए हम नोड्स हैं, नोड्स मीन आप ये समझ लो स्टूडेंट्स है, ठीक है? सो दिस इज स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, लाइक वाइज। अब सेंट्रलाइज्ड अगर प्रोसेस होता तो हम क्या करते, किसी एक बच्चे के पास सारा डेटा दे देते, बट वी डोंट वांट दैट, क्योंकि हो सकता है वो बच्चा अगर छुट्टी पे चला गया तो फिर यानी इसका मतलब वो डेटा किसी के पास मिल ही नहीं पाएगा। तो अब हमने क्या किया कि ये जितने नोट्स हैं या जितने स्टूडेंट हैं उनके पास थोड़ा थोड़ा डेटा रख रहे हैं। ना उसका तरीका क्या है? उसका तरीका ये है, मान लीजिए आपका रिलेशन है आर, ठीक है? तो आप क्या करोगे, अपने रिलेशन आर को तोड़ोगे, है ना? आप अपने, भाई यही तो बात हुई कि पूरा का पूरा डेटाबेस तो मैं नहीं रख रहा। अरे पूरा नहीं रख रहे एक जगह, तो आप कुछ कुछ टुकड़े तो रखोगे उसके। सो दिस इज व्हाट इट इज लाइक टेलिंग, देयर इज वन रिलेशन आर, व्हाट वी आर डूइंग इज हम इसके टुकड़े कर रहे हैं एंड वी आर डूइंग फ्रैगमेंट्स। तो अब इसके फ्रैगमेंट्स को हम डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे रख रहे हैं। अब आप अगर ध्यान से देखो तो कुछ फ्रैगमेंट्स को हमने दो दो जगह रखा है। जैसे रेड कलर का जो फ्रैगमेंट है उसको नोड 2 पे भी रखा है, नोड 3 पे भी। ग्रीन कलर का जो फ्रैगमेंट है उसको नोड 2 पे भी रखा है, नोड 3। तो इस तरीके से हम अपने डेटा को स्प्लिट करके रखते हैं, एंड द स्प्लिटिंग ऑफ द डेटा, द स्प्लिटिंग ऑफ द डेटा इज कॉल्ड एज फ्रेगमेंटेशन। समझ में आ रहा है? दिस इज कॉल्ड एज फ्रेगमेंटेशन। नाउ फ्रेगमेंटेशन दो तरीके के होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन, एक होता है वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन। मान लीजिए एक टेबल है, एक टेबल है जिसके अंदर मान लीजिए स्टूडेंट नाम का टेबल है और उसके अंदर 4 कॉलम है। 4 कॉलम क्या है? स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट के पापा का नाम, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट के फादर नाम का नाम और उसकी सिटी। 4 कॉलम है और उसके अंदर मान लीजिए 5 बच्चों की इंफॉर्मेशन है। मैं चाहता हूं कि एक पर्टिकुलर नोड पर, आई वांट एक पर्टिकुलर नोड पर या एक पर्टिकुलर जगह पर मैं सिर्फ 2 बच्चों की इंफॉर्मेशन स्टोर करना चाहता हूं। तो इसको कहेंगे हम, इसको क्या कहेंगे? हॉरिजॉन्टल होगा या वर्टिकल होगा? हॉरिजॉन्टल। इसको हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल, क्योंकि हम हॉरिजॉन्टली कट कर रहे हैं। तो हॉरिजॉन्टली जब मैं कट करूंगा तो उसमें कॉलम सारे रहने चाहिए, रोज कुछ रहनी चाहिए।
लेकिन अब मान लीजिए एक पर्टिकुलर नोड पे, एक पर्टिकुलर जगह पर मैं चाहता हूं कि जो इंफॉर्मेशन हो वो सारे लोगों की इंफॉर्मेशन हो, लेकिन सिर्फ उनकी स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नाम हो, तो ये किस तरीके की होगी? ये वर्टिकल। ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, मैंने रिलेशनल अलजेब्रा में आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, याद है? यस सर। यस सर। वो जो फिल्टर और प्रोजेक्शन वाला था, वो सेम चीज है। अच्छा, कई बार आप डायग्राम से भी देख के समझ सकते हो, लेकिन कई बार ऐसा भी होगा कि मुझे ना पूरे कॉलम्स चाहिए और ना पूरी रोज चाहिए, तो उसको हम कहते हैं मिक्स्ड या हाइब्रिड अप्रोच। समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। ये वाली स्लाइड देखिए, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हैव अ लुक एट दिस स्लाइड। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। क्लियर? देखिए यहाँ पर क्या था, एक टेबल था प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट में अगर आप ध्यान से देखिए 4 कॉलम है और 5 रोज है। तो अब इसको मैंने 2 तरीके से फ्रेगमेंट बनाया। पहला फ्रेगमेंट कौन सा किया है? प्रोजेक्ट 1 किस तरीके का फ्रेगमेंट है? हॉरिजॉन्टल। दिस इज हॉरिजॉन्टल। एंड ये वाला कौन सा है? वर्टिकल। अगर ध्यान से देखो तो बेटा ये हॉरिजॉन्टल है। यस सर। यस सर। अभी हमने किया ही नहीं है, ठीक है? ये सारे हॉरिजॉन्टल के एग्जांपल है। अब ये है वर्टिकल जो आप कह रहे थे, प्रोजेक्ट 1 एंड प्रोजेक्ट 2, क्योंकि इसमें रोज सारी हैं बट कॉलम्स नहीं है। ठीक है, कॉलम्स कुछ है, सारे नहीं है, ठीक है? ओके, सो दिस इज द एग्जांपल। तो ये इस तरीके से ये सब आपको नहीं पढ़ना है। एंड यस, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो आपने फ्रैगमेंट्स बनाए, वर्टिकल फ्रैगमेंटेशन, हॉरिजॉन्टल फ्रैगमेंटेशन, ये तो सही है। नाउ क्वेश्चन ये आता है कि फ्रैगमेंटेशन के अलावा जब आप डेटा को रखोगे तो डेटा को किस तरीके से रखोगे? तो अगर आप ध्यान से देखो, 2 कैटेगरी में हमें रखना है, और जिस तरीके से रखना है उसको इंग्लिश में हम बोल रहे हैं एलोकेशन ऑल्टरनेटिव्स। तो किस तरीके से हम एलोकेट करेंगे, हम कैसे डिसाइड करेंगे कहाँ कितना रखना है, कहाँ कितना नहीं? तो उसके लिए हमने एक टर्मिनोलॉजी दी है, एंड दैट टर्मिनोलॉजी इज कॉल्ड एज रेप्लिकेशन। तो वो ये कह रहा है कुछ जगह तो हम डेटा जो रखेंगे वो ऐसा डेटा रखेंगे कि वो डेटा सिर्फ वहीं रहेगा, तो उसको हम कह रहे हैं नॉन रेप्लिकेटेड। अगर आप ध्यान से देखो, इसको कहते हैं पार्टीशन। जैसे हमने फ्रेगमेंट किया, जैसे मान लीजिए ये है, तो ये मान लीजिए लाल पत्थर है, ये लाल फ्रेगमेंट। सो दिस रेड फ्रेगमेंट विल बी ओनली एट वन प्लेस। सो इसको तो कहते हैं नॉन रेप्लिकेटेड, मैंने उसकी कॉपी नहीं बनाई। बट अगर लेकिन रेप्लिकेटेड, रेड वाला तो दो प्लेस पे है उसमें। बेटा मैंने एक एग्जांपल दिया है, ठीक है? उसमें येलो वाला एक ही प्लेस पे था ना, रेड वाला डबल। चलो मेरे से गलती हो गई, येलो वाला कर लेते हैं। सो येलो वाला इज समथिंग, येलो वाला मान लीजिए मैंने एक ही साइड पे रखा, सो दिस इज कॉल्ड एज नॉन रेप्लिकेटेड, है ना? सो दिस इज लाइक पार्टीशन एंड फ्रेगमेंटेड एट ओनली वन। नाउ रेप्लिकेटेड का मतलब क्या है? रेप्लिकेटेड का मतलब है कि एक ऐसा पोर्शन, रेप्लिकेटेड का मतलब है एक ऐसा पोर्शन जो सिर्फ और सिर्फ, रेप्लिकेटेड का मतलब है एक ऐसा पोर्शन जो सिर्फ और सिर्फ एक ही मैं क्या बोल रहा हूँ, नॉन रेप्लिकेटेड का मतलब है ऐसा पोर्शन जो सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह है, एंड रेप्लिकेटेड का मतलब ऐसा पोर्शन जो मल्टीपल जगह पर है। अब नाउ द थिंग इज दैट इसमें भी 2 कैटेगरी हैं, फुल्ली रेप्लिकेटेड या पार्शियली रेप्लिकेटेड। फुल्ली रेप्लिकेटेड का तो मतलब ये है कि एक पोर्शन जो है उसकी पूरी की पूरी कॉपी मैंने उधर रख दी, है ना? और एक ये कहता है पार्शियली कि कुछ को कॉपी किया है, सबको कॉपी नहीं किया। आ रहा समझ में? आप इंग्लिश भी पढ़ोगे ध्यान समझ में आ जाएगा। ईच फ्रेगमेंट एट ईच साइड, यानी कि अगर मैं इसकी बात करूं, तो अगर इसकी बात करें तो इस येलो वाले पोर्शन को मैंने हर नोड पे रखा, दैट इज कॉल्ड एज फुल रेप्लिकेशन। और येलो वाले को कुछ जगह रखूं, कुछ जगह ना रखूं, तो इसको हम कहते हैं पार्शियल रेप्लिकेशन। क्लियर? यस सर। दिस इज वन यस सर। दिस इज वन फॉर्मूला, ये आपको करने की जरूरत नहीं, ये प्रोबेबली एमटेक लेवल पे ज्यादा काम होता है, सो यू कैन लीव दिस, ठीक है? सो अगेन दिस इज लाइक नॉट मच इज देयर, इसको आप करना चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज ये नहीं करना। आपको फुल पार्शियल ये सब करना होता है। एंड
this is something we'll discuss in the next lecture. आपको कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, otherwise we can stop. Any doubt? No, sir. Okay, आपको पता है आपका लास्ट वर्किंग डे कौन सा है, कब तक क्लासेस चलेंगी? नो सर, आई थिंक ऑफिशियल नहीं हुआ है, बट जो मुझे पता चला है कि 12th ऑफ दिसंबर तक हमारे पास टाइम है, तो आई थिंक 12th ऑफ दिसंबर तक हम आराम से अपना सिलेबस कवर अप कर पाएंगे. दिस शुडंट बी अ प्रॉब्लम. आर यू अवेयर ऑफ दिस थिंग? 12th तक हमारी क्लासेस चलेंगी? नो. No, No, sir. sir. मुझे पता चला है, बट आई एम नॉट कंफर्म, फॉर्मल नहीं है, तो अभी आप मेरी बात पे रिलाय मत कीजिएगा. सर सब टीचर से डेट दिसंबर के बाद सिर्फ एक हफ्ते क्लास चलनी है, उसके बाद 12-14 से एग्जाम्स हैं. वही वाली बात हो गई ना कि 5 तक क्लासेस चलेंगी जो पहले था. मुझे पता चला है कि शायद 12 तक होगा. ओके, वील सी, डोंट वरी. अगर ऐसा कुछ होगा तो उस तरीके से फिर मैनेज कर लिया जाए. ठीक है? ओके सर. एनीथिंग यू वुड लाइक टू आस्क? नो सर. नो? ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट. बाय. थैंक यू सर. बाय.